Okay, welcome once again. In this video, we are going to solve question number 2 onwards. All right, because 2-1 we have solved in the previous video. Question number 2, if you go through, you will see the question says, for which value of k will the following pair of linear equations have no solution? देखा आपने क्वेश्चन नंबर 2 जो है यहाँ पे, for which value of k will the following following pair of linear equations have no solution? Equations क्या है हमारे पास? thrice x plus y plus 1, thrice x plus y is equals to 1, और नीचे है twice k minus 1 into x plus k minus 1 into y is equals to twice k plus 1. Okay, for these two equations, for what value of k, for which value of k the following pair of linear equations will have no solution बोला गया है. So it's a very very interesting one. Let's start. So the first equation is, let us write the first equation as thrice x plus y is equals to 1. So we are going to shift that one this side, then it will be thrice x plus y minus 1 is equals to 0. That will be equation number 1. And the second equation is twice k minus 1 whole into x plus k minus 1 whole into y is equals to twice k plus 1. Okay, so we are going to put here whole bracket. After that, we are going to shift this twice k plus 1 this side of the equation. Then it will be twice k minus 1 whole into x plus k minus 1 whole into y minus 2 times k plus 1 is equals to 0. It will be negative because that was positive, while it is in the right hand side of the equation. When you bring it this side, then it will become negative. Okay, inside the bracket there is no change in sign. Outside the bracket it was positive here before. After shifting it this side, then it becomes negative. So let's make it question number 2. अभी जो केस है, इन दोनों इक्वेशंस में हमें बोला गया है कि have no solution. No solution का कंडीशन क्या था, हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं. तो आप सभी को पता है कि नो सोल्यूशन वाला कंडीशन जो है, सिंस द पेयर ऑफ इक्वेशन हैज नो सोल्यूशन, हम लिखेंगे सिंस द पेयर ऑफ इक्वेशंस हैव नो सोल्यूशन, therefore the condition must satisfy is, कौन सा कंडीशन होगा जो सेटिस्फाई होगा नो सोल्यूशन के लिए? यस, ऑल ऑफ यू नो दैट फर्स्ट द कंडीशन वाज a1 by a2 is equals to b1 by b2 but not equals to c1 by c2. हमने सबसे पहले जैसे ही हमने यहाँ पे लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स चैप्टर 3 एक्सरसाइज नंबर 3.4 एक्सप्लेन किया था, उस समय हमने बोला था कि if two equations have parallel lines, if two linear equations have parallel lines, then they never ever intersect even if you extend them indefinitely, and in that case they will have no solution. And if it is so, then the condition must satisfy will be a1 by a2 is equals to b1 by b2 but not equals to c1 by c2. That was the condition. All right, now you can refer to exercise 3.2 when the conditions are mentioned. Now let us substitute the values of a1, a2, b1, b2 and c1, c2 in their respective places. पहले इक्वेशन में देखो x का कोएफिशिएंट जो कि a1 है, what is the coefficient of x? That is 3 by a2. What is the coefficient of a2 in the second equation? That is coefficient of x in the second equation, that is twice k minus 1. Twice k minus 1 is equals to b1. What is b1 here in this first equation? That is coefficient of y. Y का coefficient क्या है? That is 1. Nothing else there means there will be 1. Then b2. What is the coefficient of y in the second equation, which is
b2 that is k minus 1 excluding y को छोड़ के कुछ भी है वो सारा का सारा कोएफिशिएंट होगा, तो k minus 1 not equals to c1 by c2. What is the coefficient or what is the constant term in the first equation, that is minus 1 by c2. What is the constant term in the second equation, that is minus twice k plus 1 minus twice k plus 1. Okay, now minus minus cancel हो गए. अभी आपको करना क्या है कि you need to compare the first two parts. When you compare you will get a solution for k. Okay, तो देखते हैं क्या होता है. अगर आप ये दोनों पार्ट लेकर के इसको कंपेयर करते हो तो k का वैल्यू शायद आपका निकल सकता है. तो हम देखते हैं क्या होता है इसमें. Now comparing you can write, or just now you can write 3 by twice k minus 1 is equals to 1 by k minus 1. If you perform the cross multiplication, then you will get 3 times k minus 1 will be 3 times k minus 3 is equals to 2 times k minus 1. Alright, इसको इसके साथ 1 के साथ क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पे k minus 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है. ये जो 3 है 3 k के साथ मल्टीप्लाई होगा और 3 1 के साथ भी मल्टीप्लाई होने वाला है. तो you need to shift this twice k this side. Thrice k minus twice k. This was positive twice k. If you bring this side, then it will be negative twice k. Then minus 3. When you shift that side, that will be plus 3 minus 1. So ultimately 3 times k में से 2 times k subtract हो गया, reduce हो गया, तो रहेगा क्या? Only k. And 3 minus 1 is only 2. That means k is equals to 2. You can write. All right. तो k is equals to 2 हो गया. यहाँ पे हमारे पास k is equals to 2 हो गया. This is the value for k. ठीक है, पर जरूरी नहीं कि k का वैल्यू 2 ही हो. 2 के अलावा भी कुछ और हो सकता है. क्या हो सकता है हम जानने की कोशिश करेंगे. ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ पे c1 by c2 का जो वैल्यू है, जो रेशियो है, उस रेशियो को जो है b1 by b2 और a1 by a2 के साथ इक्वल नहीं होना है. तो इसके लिए k का वैल्यू 2 ही हो ऐसा जरूरी नहीं. 2 के अलावा भी और कुछ हो सकता है. वो क्या हो सकता है हम जानने की कोशिश करते हैं. ठीक है, भले ही आपके टेक्स्ट बुक में पीछे जो आंसर्स दिए गए हैं k इक्वल्स टू 2 ही दिया गया हो, पर जरूरी नहीं कि k इक्वल्स टू 2 ही हमेशा करेक्ट आंसर हो. कुछ और भी हो सकता है अदर देन k इक्वल्स टू 2. तो देखते हैं, अगर हम ये दो पार्ट जो नॉट इक्वल पार्ट है इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो हमें क्या मिलता है देखते हैं. ठीक है, तो ये वाला पार्ट, सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट वी आर गोइंग टू solve it. Then it will be also, we are going to write also 1 by k minus 1 is equals to 1 by not equals to, right? Not equals to है यहाँ पे, जो not equals to है तो not equal to ही हम रखेंगे not equal to, बट जो सोल्व करेंगे वो सिंपल सा यही मेथड बनेगा, कुछ दूसरा नहीं है. Plus 1. Just you need to cross multiply. Then also they are not equal. Not equal है तो कुछ भी टेंशन लेने का नहीं. आप जैसे भी करो not equal ही रहेगा. ठीक है, हमें पता है कि 3 not equals to 5. अगर 3 की जगह में हमने 4 भी लिख लिया तो भी तो ये not equals to 5 ही तो बनेगा. इक्वल तो नहीं है ना. 3 not equal to 5 आपको पता है, तो यहाँ पे हमने 3 को हटा करके अचानक से 4 लिख दिया. क्या ये इक्वल टू 5 बन जाएगा? अभी नहीं बनेगा. तो भी ठीक उसी तरीके का कॉन्सेप्ट है ये. दिस पार्ट इज नॉट इक्वल्स टू दिस पार्ट. अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी करते हो तो भी नॉट इक्वल है, चिंता ही नहीं है. तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई. ये वाला 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ट्वाइस k प्लस 1 होगा, और ये वाला जो है 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये जो है नॉट इक्वल हो गया. तो k minus 1 into 1 मल्टीप्लाई करोगे तो अल्टीमेटली k minus 1 ही रहेगा. अभी भी ये नॉट इक्वल है, चिंता करने की कोई टेंशन नहीं है. टेंशन तब होता जब इक्वल होता, तो आपको सोचना पड़ता कि वाकई में ये इक्वल है या नहीं है. पर यहाँ पे जो है आपको जज करने की भी कोई जरूरत नहीं है. आप जस्ट लिखते जाओगे कि नॉट इक्वल है तो चिंता ही नहीं है. You need to shift this k this side and this 1 that side, the other side. Then it will be twice k minus k. ठीक है ना, अभी भी ये नॉट इक्वल ही है. इस प्लस 1 को उस ओर शिफ्ट करोगे तो माइनस 1 बनेगा. माइनस 1 तो पहले से एक था ही था, तो ट्वाइस k 2 टाइम्स k में से एक k माइनस हो गया, रिड्यूस हो गया. देन इट विल बी ओनली k नॉट इक्वल्स टू, इट विल बी माइनस 2. इसका कहने का मतलब यह है कि k का वैल्यू जो है नॉट इक्वल टू माइनस 2 है. मतलब k का वैल्यू एक्सेप्ट माइनस 2
-2 नहीं होना है। अगर -2 ना हो, उसके अलावा कुछ भी हो, -3 हो, 2 हो, 4 हो, 5 हो, कुछ भी हो, सिर्फ -2 नहीं होना है। ठीक है, समझ आया? फॉर k इक्वल्स नॉट इक्वल्स टू -2 मतलब फॉर द वैल्यू, फॉर एनी वैल्यू ऑफ k का कुछ भी वैल्यू हो सकता है। क्या नहीं हो सकता? -2 नहीं हो सकता। बाकी के बाकी कुछ भी हो सकता है वैल्यू। k इक्वल टू 3 भी हो सकता है, k इक्वल टू 4 भी हो सकता है। फॉर k इक्वल टू 5 ऑल्सो द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विल हैव नो सोल्यूशन। समझ आई बात? तो ऐसा जरूरी नहीं कि k का वैल्यू 2 ही हो, इसीलिए हमने बताया था कि k का वैल्यू 2 से 2 ना भी हो सके, 2 के अलावा भी कुछ और हो सकता है। क्या हो सकता है? वो तो बहुत सारे कुछ हो सकते हैं, पर क्या नहीं हो सकता हमने जान लिया। k का वैल्यू क्या नहीं हो सकता? -2 नहीं हो सकता। ठीक है, अगर k का वैल्यू -2 हो गया, इफ k इक्वल्स टू -2, देन दिस टू इक्वेशंस विल हैव सॉल्यूशन। पर कंडीशन जो है नो सॉल्यूशन के लिए है, तो हमें नो सॉल्यूशन रखने के लिए k का वैल्यू जो है, to maintain this no solution condition, the value of k should not be equals to -2, and excluding -2, k may have any value for which the linear equations will have no solution. आई बात समझ? तो you can write the conclusion as k equals to 2 or any value for any value of k except -2. ये अगर आपका निकला है आंसर, तो आपको कंक्लूजन कैसे लिखना है मैं बता रहा हूं, आप इसको लिखिए जरा। For any value of k except -2, the pair of equations will have no solution. ठीक है, फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूं। For any value of k except -2, k का कुछ भी वैल्यू हो सकता है, सिर्फ -2 नहीं होना है। So for any value of k except -2, the pair of equations will have no solution. I think you have understood. That is the conclusion and that is the answer only. So now we are going to solve the third question. The third question is for what value of p the system of equations, that is px minus y is equals to 2 and 6x minus 2y is equals to 3 has only one solution. So the first equation we solved with the condition having no infinite numbers of solution, having infinite numbers of solution. The second question we solved with the condition having no solution, and the third question is the question with only one solution. Okay, तो तीनों टाइप के क्वेश्चंस हमारे यहाँ पे सोल्व हो जाएंगे। इसके बाद ही फिर से दो तीन क्वेश्चंस जो है आपके टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं। So you can refer to the RD Sarbar text book also for more such kind of questions. Okay, तो ये तीनों टाइप का क्वेश्चंस अगर हम सोल्व कर देते हैं तो आपको समझने में इजी हो जाएगा बाकी के सारे क्वेश्चंस। ठीक है, सो लेट्स डू दिस क्वेश्चन नंबर 3। So now question number 3, the question is for what value of p the system equations px minus y is equals to 2 and 6 minus 2y is equals to 3 has only one solution. So this is the condition that is having one solution. In the previous two questions we have solved having infinite numbers of solution. Then the second question just now we solved having no solution, and this question is having only one solution. So let's begin. It's going to be the very interesting one and very easy one. The third question, I have written the equations directly, that is px minus y is equals to 2. 2 को इस ओर शिफ्ट करना है, जो कि आप बार बार करते आ रहे हो। So that is px minus y minus 2 is equals to 1 is equals to 0. That is question number 1. And the second question was that is 6x minus 2y is equals to 3. 3 को इस ओर शिफ्ट करना है, तो 6x minus 2y minus 3 is equals to 0. That is equation number, yes, equation number 2. Now, according to the question, the condition is given is the two equations have only one solution. ठीक है, तो आप लोग ये लिख लो। थोड़ा समय के लिए ब्लर हो गया था स्क्रीन। हमारे पास दो इक्वेशंस दिए गए हैं। That was the first equation, that is px minus y is equals to 2,
2 को हमने इस ओर शिफ्ट किया है, तो ये px माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। और आगे जाकर के दूसरा जो इक्वेशन है हमारे पास, दैट इज 6x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 3। तो हमने 3 को भी शिफ्ट किया है इस ओर, और ये बन गया 6x माइनस 2y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, लिख लिया आपने, लिखा गया। तो अभी करते हैं क्या, इनके जो क्या कंडीशन है, व्हाट इज द कंडीशन? यस, ओनली वन सॉल्यूशन बोला गया है। द कंडीशन इज ओनली वन हैज वन सॉल्यूशन। तो वन सॉल्यूशन वाला कंडीशन कौन सा था? हम लिखेंगे सिंस द इक्वेशंस have only one solution, therefore the condition must satisfy is कौन सी कंडीशन है? That is a1 by a2 not equals to b1 by b2। yes, समझ आया? b1 by b2 ये वाला अगर कंडीशन है तो दोनों इक्वेशंस के ओनली वन सॉल्यूशन होंगे। ग्राफ में क्या बताता है? ग्राफ में बताता है कि इफ टू लीनियर इक्वेशन, सपोज ये वाला पहला लीनियर इक्वेशन हो गया जो कि लीनियर स्ट्रेट लाइन बनता है, और दूसरा वाला लीनियर इक्वेशन इज इंटरसेक्टिंग, जस्ट इंटरसेक्टिंग। तो ये द पॉइंट वेयर और एट द पॉइंट एट विच दे इंटरसेक्ट इज द सॉल्यूशन, ओके, इज द यूनिक सॉल्यूशन टू द क्वेश्चन, टू द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, जिस पॉइंट में ये इंटरसेक्ट करता है, जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करता है, यही पॉइंट हमें इन दोनों इक्वेशंस का सॉल्यूशन बताएगा। ठीक है, तो अगर ऐसा इंटरसेक्टिंग है तो कंडीशन कौन सा अप्लाई होगा? ये a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2, तब ही ओनली वन सॉल्यूशन पॉसिबल है। ठीक है, तो ये बात हमने समझ ली, और आगे इसको हम वैल्यूज डालेंगे, यहाँ पे वैल्यूज सोल्व करने, वैल्यूज लिख करके सोल्व करने वाले हैं। तो look at the first equation. What is the first equation? That is px minus y minus 2 is equal to 0. What is the coefficient of x? That is a1. a1 का वैल्यू कितना है यहाँ पे? That is p. तो लिखें p. a2 का वैल्यू कितना है? In the second equation, coefficient of x, that is 6 is equals to b1। That means पहले इक्वेशन में b1 मतलब y का कोएफिशिएंट कितना है? देखो कुछ भी नहीं है यहाँ पे, कुछ भी नहीं है तो हमेशा 1 रहता ही है, तो -1 हो गया यहाँ पे, ये वाला -1। b2 क्या है? y का कोएफिशिएंट है, कितना है यहाँ पे? What is the coefficient of y in this case? That is -2। all right, -2। ये वाला माइनस माइनस आप कट कर सकते हो। तो जैसे ही हमने ये वाले लिख लिए हैं तो आपको भी मिलने वाले ही हैं अभी आंसर, जो है p by 6 not equals to 1 out of 2। ये 6 को उस ओर लेके जाओ, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, नॉट इक्वल टू है, तो जैसा कि मैंने अभी अभी बताया था आपको पहले ही, इससे पहले वाले क्वेश्चन में, नॉट इक्वल टू है तो आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। नॉट इक्वल टू साइन आपको बरकरार रखना है, लिखना है कंसिस्टेंटली, और 6 को क्रॉस मल्टीप्लाई करो। जैसा ही आप 6 को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 6 जाकर के 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस वाइज 6 जाकर के 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 को नहीं लाना है, हमारा काम है p का वैल्यू निकालना, हमारा काम है p का वैल्यू निकालना, तो हमें 2 को इस ओर नहीं लाना है, सिर्फ 6 को ले जाना है, तो p रह गया इधर। समझ आ गया? We need to find out the value of p only. We need not to bring this to this side. We need not to multiply p with this 2. All right. जैसे ही आप मल्टीप्लाई करते हो 6 by 2 बन गया, और 6 by 2 all of you know that is 3। तो p not equals to 3 बताता है हमारे यहाँ इक्वेशन, ये सॉल्यूशन हमें p not equals to 3 बताता है। तो इसका मतलब क्या है समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो मतलब इसका ऐसा कुछ निकलता है, देखो आपके लिए ये क्वेश्चन था कि नो सॉल्यूशन, p के किस वैल्यू के कारण ये दो इक्वेशंस के, और सॉरी वन सॉल्यूशन रहेगी, इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करने के बाद सिर्फ वन इक्वेशन रहेगा, कौन सा वैल्यू होगा p का? तो दैट वाज द क्वेश्चन, राइट?
और हमारे पास आंसर निकला है p नॉट इक्वल्स टू 3। अरे भाई ये तो गजब हो गया, ये क्या निकल गया, p नॉट इक्वल्स टू 3 है। हमारे पास निकालना था p का वैल्यू और हमारे पास यहाँ पे p का वैल्यू जो नहीं है वो निकल गया। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं, यही आपका आंसर है। कैसे लिखोगे आप, p का कुछ भी वैल्यू हो सकता है, सिर्फ क्या नहीं होना है, 3 नहीं होना है। समझ आ गई बात, p का कुछ भी, फॉर एनी रियल नंबर ऑफ p these two equations may have only one solution except p equals to 3। p का वैल्यू 3 नहीं होना है। for any real value of p, for any real number of p और for any real number except p equals to 3, p का वैल्यू जो है 3 नहीं होना है। for any value of p except 3, the given pair of equations will have only one solution, that is the condition। ठीक है, p का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, सिर्फ 3 नहीं होना है। then these two equations will have only one solution, एकमात्र solution होगा, रहेगा। ठीक है, so I hope you have understood this solution too।